Good morning, everyone. How are you, beta? Yes. The previous chapter that we have completed, have you gone through all the chapter and completed the question answers also? Okay, so today we are going to start with our next topic of civics, growing up as boys and girls. As we all are growing with our identity of as a boy and as a girl. And we are thinking ki all the boys and all the girls, they are growing in all of the world at the same way as you are growing. But every society, it is not the same everywhere. Everywhere, the different opportunities, different situations are there for boys and girls to grow up. So we will discover these more about growing up as boys and girls in different societies in this chapter. In that day, we have seen on the map where the Samoa Island is and where the Madhya Pradesh is. Okay, we will discuss about these states, these two places in our today's topic. First, we will discuss about Samoa Island. Okay, about first case study that we will do about it is of Samoa Island. Okay, first case study means we will study about it, Samoa Island. And this that we are discussing the things about this island, it is about 1920s. Okay, in 1920s, whatever things we are going to discuss, they belong to 1920. So Samoa Island first, this is a large part of islands. These islands are in southern part of Pacific Ocean. Clear? And in this island, first things that our research reports tell us that in this area, in this island, children don't go to school. The children in 1920s, they were not going to school. And all the boys and girls, they were learning many things at home, such as how to take care of their siblings. Their small siblings means whether there are small boys or small girls, okay? Brothers or sisters, whatever they are having. So they are taking care of those. They are also learning household work. Boys and girls, both, they are learning household work and taking care of their siblings also. So they were also, when they grow up, okay, fishing was very important activity there because it was an island and fishing was an important activity. So they were also learning fishing when they were young. Okay, so at different areas of their childhood, first they are learning the household work, then they are learning the taking care of their siblings, then they are grown up. Okay, so when older children such as above 5 years old, okay, if the children their children, they are 5 years old, then their parents, they allow them to take the responsibility on their own. Okay, they on their own take their responsibility. They started taking care of their siblings. And if the boy is of 9 years old, then he goes for fishing and for planting coconuts. Okay, he is doing the outdoor job. And when the girl, he is of 14, then he also joins all the boys that are doing fishing or plantation work. So girls also join them. And at the same time, cooking, that is also done in special cooking houses, and both boys and girls, they are involved in that cooking, and mostly boys are more involved. Okay, boys are supposed to do more work and girls, they are usually help them in their work. So this is about Samoa Islands, that how the boys and girls are growing up here. Okay, so as we think, as you are growing as a boy, you are getting all the facilities. In the same way, all children, they are growing in the same way, they are getting all the facilities, but it is not the same. So they have the different thinking about boys and girls. Okay, boys, when they are 9 years old, they go for fishing, and girls, when they are 14 years of age, then they will go for fishing. And boys used to do more work.
So now second we will discuss about the Madhya Pradesh. ठीक है, सेकेंड जो हम स्टडी करते हैं that is of Madhya Pradesh, and Madhya Pradesh is of one state of India, है ना. तो ये तो एक स्टेट है इंडिया का, and the research that has been done and the talk we are talking about that is about 1960. ठीक है, 1960s की हम बात कर रहे हैं. That in 1960s in Madhya Pradesh there is this is a story of a small town that from 6th class, ठीक है, from 6th class there are separate schools for boys and girls. They don't go to same school, they are going to different schools. Boys are having different boys school and girls are having girls school, and the girls schools that they are having, that is उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, डिजाइन है, वो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज दैट गर्ल्स स्कूल इज हैविंग कोर्टयार्ड and that courtyard is not visible from outside, and girls used to play there. And whether the boys school, it is having no such courtyard. Boys school में ऐसा कोई courtyard नहीं है. There is open ground before the boys, जो भी boys school है उसके सामने open ground है, and boys used to play there. So this is the first difference, ठीक है, that we see. And then at that place, when the school is over, ठीक है, when the school over, so then the boys, we can see boys that they are standing in the streets and watching the girls, they are going in the narrow streets. So it means girls, when they are going from school to home, they are going in groups, they are going in groups, and it seems that they are having purpose. They are if they are moving through streets, so that street is just their way to go home, and they are looking purposeful from moving from school to home. But boys, they are standing there idle, and they are standing idle in streets for moving, for doing the tricks on cycles, and then standing idle, ठीक है, they playing. So but girls, they are more purposeful. When they are moving through streets, they are moving in groups. Perhaps there is some fear in their mind, ठीक है, for teasing or for attack, कि कोई उनको टीज ना करे या कोई उन पे अटैक ना करे, तो शायद ये उनके माइंड में डर है. So this we have discussed about Samoa Island and Madhya Pradesh, कि how the different treatment or different provisions or different situation has been there by that society for boys and girls. So after reading these two examples, so we think कि there are not only one way of growing up, okay, कि as you are growing, so ऐसे सिर्फ यही नहीं है कि सभी बच्चे same way से grow कर रहे हैं. There are different ways of growing up as boys and girls. लेकिन अभी जो हम कहते हैं कि ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ठीक है. और अगर हम अपने घर के एल्डर से बात करते हैं, तो जब हमारे एल्डर्स थे, तो व्हेन दे वर यंग, जब वो चिल्ड्रन थे, तब उनकी ग्रोइंग अप किसी और तरीके से थी, ठीक है. इफ यू विल टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, देन यू विल आस्क देम कि वेदर द ग्रोइंग अप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वर सेम और एनी डिफरेंट फैसिलिटीज वर गिवन टू बॉयज और गर्ल्स, ठीक है. सो यू कैन आस्क देम दैट व्हाट वाज व्हेन दे वर एज यू स्मॉल चिल्ड्रन, सो व्हाट ट्रीटमेंट वाज बीइंग डन टू देम, ठीक है, उनके साथ कैसा ट्रीट होता था या कैसी उनको फैसिलिटी मिलती थी. इन द सेम वे हमारी जो सोसाइटी है, आवर सोसाइटी, इट इज क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन. हमारी सोसाइटी अगर कई बार स्पेशल डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो क्लियर डिस्टिंक्शन बना देती है ऐसी चीजों से. कैसे? जो हमारी सोसाइटी है, आवर सोसाइटी, it makes clear distinctions, ठीक है. distinctions means difference. हमारी जो सोसाइटी है, it makes clear distinction between boys and girls. अब वो कैसे बनाती है? sometimes we see, अब की कई बार डिस्क्रिमिनेट करती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि हमें लगता है कि वो क्लियर डिफरेंस कर रही है. एज सच एज एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल एंड बॉयज,
and any gift is given to them, उनको कोई गिफ्ट दिया जाता है, then usually boys is given a car and girl is given a doll. ठीक है, अगर कोई भी छोटा सा अगर बेबी भी है उसको भी if any toy they have to give. In our society most of the people they used to do this. ठीक है, they give a car to boy child and give a doll to baby child. So why? It means if both toys are having if the that is boy or girl, they both will play with that toy. वो बच्चा तो उसके साथ खेलेगा, but the society who is giving that toy, तो वो उनके माइंड में एक चीज बिठा रही है कि दिस फ्यूचर रोल यू हैव टू प्ले. ठीक है, कि वो उनके साथ कि गर्ल्स को कि दिस इज द वे यू शुड ड्रेस अप. ठीक है, ये आपका ड्रेसअप का वे होना चाहिए. बॉयज आपको यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी हार्श. गर्ल्स को यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन. ठीक है, so these the small differences that our society do, ये हमारी सोसाइटी करती है. ठीक है, these are differences created by society. तो ये इन्हीं चीजों से सोसाइटी क्या करती है, ये बच्चों के मन में बिठा देती है कि दिस इज अ स्पेशल रोल दैट यू हैव टू प्ले, कि ये आपको रोल जो है वो प्ले करना है व्हेन यू विल बी ग्रोन अप. ठीक है, सो इसी तरह रोल जो है कि men what should a man do, what should a woman do, this is also fixed. ठीक है, इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं. there is one more example in your book, so you can read this story later on. ठीक है, इसको हम इसी स्टोरी को ही हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो इसी स्टोरी में दो बच्चे हैं. ठीक है, हम उन दो बच्चों को ये स्टोरी किस पे है, ये स्टोरी है कि माय मदर डजंट वर्क. ठीक है, कि माय मदर डजंट वर्क, ये स्टोरी है. ठीक है, ये हमारी एक फर्स्ट दो हमने ये केस स्टडीज कर ली. ठीक है, तीसरा हम इसका एग्जांपल लेते हैं. अब ये स्टोरी में क्या है, इन दिस स्टोरी देयर आर टू चिल्ड्रन. ठीक है, ए और बी, दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, दो बच्चे हैं ए और बी, और उनके स्कूल की तरफ से एक एक्सकर्शन जा रही है. ठीक है, कहीं भी विजिट कर लिए जा रहे हैं. And their ma'am is asking for volunteers that any of your parents can do volunteer. So B की जो मदर है she is ready. ठीक है, वो साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, बट A उसकी मदर जाने के लिए रेडी नहीं होती. Why? A अपनी जो है अपनी मदर को बोलता है कि मॉम प्लीज गो विद मी, एज द मदर ऑफ B ऑलवेज गो विद हर. कि जो बी की मदर है वो तो हमेशा साथ जाती है, तो आप भी मेरे साथ जाओ. अब ए की जो मदर है शी इज वर्किंग इन ऑफिस. ठीक है, वो एक ऑफिस में वर्क करते हैं एंड शी इज नॉट गेटिंग लीव, और उसको वहां से लीव नहीं मिल रही, बट शी इज अ हाउसवाइफ और वो मैनेज कर लेती है एंड गो विद हिज वर्ड, और वो अपने बच्चे के साथ चली जाती है. सो नाउ ए एंड बी बोथ आपस में बात कर रहे हैं. सो बी ए को बोलता है कि माई मदर डजंट वर्क, तो मेरी मदर तो साथ में जा रही है. तो वो कहता है नहीं, मेरे मम्मा काम करते हैं, तो शी कांट गो विद मी. ठीक है, सो दीज दे आर टॉकिंग अबाउट. फिर ए अपने मदर को बोलता है कि बीज मदर डजंट वर्क सो शी इज गोइंग, कि उसकी मम्मा तो काम नहीं करते इसलिए वो जा रहे हैं. तो फिर देन हिज मदर हु इज वर्किंग इन ऑफिस, she goes to B's mother, वो उसके मदर के घर जाती है, and she asks him कि आपका बेटा बोल रहा है कि my mother doesn't work, आपका बच्चा बोल रहा है कि मेरी मदर काम नहीं करती. But then she both talks, वो दोनों आपस में बात करती हैं कि ठीक है, अब ये दोनों की मदर हैं. ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, दोनों बच्चे हैं, किड्स हैं, और ये उनकी मदर है. एक मदर वर्किंग इन ऑफिस है, दूसरी मदर क्या है, हाउसवाइफ है. ठीक है, अब ये बी क्या कह रहा है कि माई मदर डजंट वर्क बिकॉज शी इज ए हाउसवाइफ, तो वो काम नहीं करती. ए क्या कह रहा है, माई मदर शी इज वर्किंग इन ऑफिस. सो अब दोनों की मदर, जो ए और बी की मदर है, वो आपस में मिलती हैं. ठीक है, एंड दे टॉक्स. अब ए की मदर बी को बोलती है यू कैन टेक अ 1 day लीव, क्योंकि बिकॉज शी इज डूइंग वर्क एट होम, वो तो घर में काम कर रही है ना. सो हाउ शी कैन टेक ए लीव. सो अब बी की मदर बोलती है हु इज ए हाउसवाइफ, तो जो हाउसवाइफ है नाउ शी टेल्स की टुडे आई विल गो ऑन अ स्ट्राइक. ठीक है, आज का दिन
मैं एक स्ट्राइक पे जाऊंगी, स्ट्राइक मीन्स आई विल नॉट डू वर्क, ठीक है, मैं कोई काम नहीं करूंगी, सो आई एम ऑन लीव टुडे, कि कल का वो बोल देते कि कल एक दिन सारा दिन मैं लीव पे हूँ, तो आई विल नॉट डू वर्क, सो यू कैन मैनेज ऑन योर ऑन, ठीक है। तो जो अब बी की फैमिली है, ठीक है, बी की फैमिली है, वो कहते हैं कि नाउ आर टुडेज मदर इज गोइंग ऑन स्ट्राइक, सो वी विल मैनेज, वी विल हैव फन, हम सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि आज मम्मा तो काम नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से अपने मजे से अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब मॉर्निंग का टाइम हो जाता है, मॉर्निंग का टाइम जब होता है, स्कूल का टाइमिंग हो गया, ठीक है, बट मदर इज ऑन लीव, मदर कोई काम नहीं कर रहे हैं, शी इज सिटिंग आइडल, ठीक है। स्कूल बस आ जाती है, बट द किड्स आर नॉट रेडी, ठीक है, किड्स रेडी नहीं है, लंच बॉक्स रेडी नहीं है, देन हर फादर, जो उनके बच्चों के पापा हैं, शी सेज कि आई विल ड्रॉप यू इन कार, मैं आपको अपनी कार में अब छोड़ दूंगा, और जो मनी है आप, शी गिव्स, हर मदर गिव्स मनी कि ये पैसे ले जाओ स्कूल में, यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम योर कैंटीन। देन व्हेन दे रिटर्न होम, जब सारा दिन काम करके उसका हस्बैंड शाम को वापस आता है, so then he see that ki there is all things are littering around, there is a mess in the house, तो ऐसे लगता है कि जैसे हरिकेन आ गया हो, भूचाल आ गया हो घर में, तो इस तरह सारी चीजें जो हैं मतलब कि complete mess has been created, so then she says कि okay I have to make tea for myself, अब मुझे टी भी अपने लिए खुद ही बनानी पड़ेगी, because you are on leave, अब आप तो छुट्टी पे हो, तो इट्स मीन्स कि एक दिन में उन सबको रियलाइज होता है, बच्चों को भी, उसके हस्बैंड को भी, कि अगर मेरी मम्मा काम नहीं कर रही हैं, शी इज नॉट वर्किंग इन ऑफिस, लेकिन घर में तो वो काम कर रही है, शी इज वर्किंग इन हाउस, ठीक है, वो घर में काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, वी डोंट वैल्यू हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में ही ये चीज बन गई है कि आर सोसाइटी डज नॉट वैल्यू हाउस वर्क। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वैल्यूइंग हाउस होल्ड वर्क। ये स्टोरी क्लियर होगी बेटा, व्हाट वाज इन दिस स्टोरी? यस बच्चे, टिल द ऑल पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस आर क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड। सो now we are discussing valuing household work, ठीक है, कि जो हम हाउस होल्ड वर्क है उसको वैल्यू करना। अब हाउस होल्ड वर्क में आता क्या है, हाउस होल्ड वर्क, सो व्हाट कम्स इन हाउस होल्ड वर्क? अब हाउस होल्ड वर्क में बहुत सारे काम आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टेकिंग केयर, केयर गिविंग टास्क, केयर गिविंग टास्क में जो घर के स्मॉल किड्स हैं, घर के एल्डर्स हैं, या अगर कोई बीमार है, इल पर्सन है, उसके भी केयर करनी, ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए, केयर गिविंग टास्क, ठीक है, वो सारे केयर गिविंग टास्क हो गए। उसके साथ जो बाकी हाउस वर्क्स होते हैं वो तो होते ही हैं, ठीक है, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा, तो वो सारे काम होते हैं। तो इट मीन्स हाउस होल्ड वर्क में काम आ जाते हैं विद हाउस वर्क, केयर गिविंग टास्क आल्सो, केयर गिविंग टू किड्स एंड एल्डर पर्सन्स इन सोसाइटी, जो हमारे घर में एल्डर पर्सन हैं उनकी भी केयर करनी है, और जो स्मॉल चिल्ड्रंस हैं उनकी भी केयर करनी है, ठीक है। तो हम ये सभी क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो सारे काम हैं ये किसके हैं, वुमेन के, हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये जो घर के काम हैं, केयर गिविंग टास्क करना है या हाउस वर्क है, तो ये सारे किसके साथ एसोसिएटेड हैं, वुमेन के साथ, ये हमने सपोज किया हुआ है। ये क्या है, हमारी सोसाइटी ने हमारी सोच बनाई है, दिस थिंकिंग हैज बीन मेड आवर सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी ने बनाई हुई है। सो इस जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग के लिए वर्क करने की जरूरत किसे है, गवर्नमेंट को भी वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। सो ये हमारी सोसाइटी, इट हैज थॉट कि दिस ऑल वर्क्स, दे आर द वर्क्स ऑफ वुमेन एंड दे आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू, बिकॉज जैसे कि ये बच्चा भी बोल रहा था कि मेरी मदर तो काम ही नहीं करते हैं,
बट शी इज डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, लेकिन वो बहुत काम कर रही है, ठीक है ना। तो इट मीन्स हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, हाउस होल्ड वर्क को डी वैल्यूज। डी वैल्यूज होता है कि किसी चीज की वैल्यू ना करना, ठीक है। इट इज डी वैल्यूइंग द वर्क ऑफ वुमेन। अब इसी में एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब जो ये हाउस होल्ड वर्क है, अभी इसमें आपने देखा है कि जो मेनली हाउस होल्ड वर्क करने के लिए हेल्पर्स भी अगर हम रखते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हम रखते हैं, तो वो भी क्या होती है, मोस्टली वुमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें करेंगे लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। अब जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो भी रखे जाते हैं साथ में कि वो मदर की हेल्प करवाएंगे, ठीक है। अब उनकी लाइफ भी कैसे होती है, मोस्टली वो भी क्या होती है, मोस्टली वो वुमेन होती हैं, है ना। वो भी बहुत हार्ड वर्क करती हैं, लेकिन जो उनकी हार्ड वर्क के उनको हम कहते हैं ना कि रिवॉर्ड, रिवॉर्ड किसमें, सैलरी में जो उनको जाती है, दैट इज ऑल्सो वेरी लेस, ठीक है। लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क होता है, लेकिन काम का टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनको जो पेमेंट होती है लेस वैल्यू, ठीक है, उसकी लेस वैल्यू मानी जाती है कि उस काम का कोई इतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए जो उनको पेमेंट की जाती है वो भी कम ही की जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि डी वैल्यू किया गया है वुमेन का वर्क को, और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हम घर में लगाते हैं उनके भी काम की हम वैल्यू कम ही करते हैं। दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, बहुत लॉन्ग आवर्स भी होते हैं, ठीक है, उनके काम करने का टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। कई फिजिकल वर्क, कई जैसे कई जगह पर तो द वुमेन एंड गर्ल्स दे हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम फॉर अवे प्लेसेस, तो वहां से दूर से उनको पानी लाना पड़ता है, तो दे हैव टू डू फिजिकल वर्क भी बहुत सारा हो जाता है, हार्ड वर्क भी बहुत होता है, ठीक है। द women they used to get up at 5 a.m. in the morning and even till sometimes till night they don't get any time to rest, उन्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, बट इवन देन वी आर नॉट वैल्यूइंग देयर वर्क, तो वी आर गिविंग लेस वैल्यू, हम उनके काम की वैल्यू नहीं कर रहे, लेस वैल्यू उनको दे रहे हैं। और सेम जो डोमेस्टिक वर्कर है, सेम उनके साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसमें एक और स्टोरी है इन्हीं डोमेस्टिक वर्कर्स की, कि डोमेस्टिक वर्कर्स का जैसे कि मिलानी, ठीक है, एक डोमेस्टिक वर्कर है, तो शी इज सेइंग कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको प्रॉपर जो पेमेंट उनको देनी चाहिए वो पेमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। तो जो उनके जैसे अगर वो और उनके साथ डोमेस्टिक वर्कर, देयर आर 2-3 मोर डोमेस्टिक वर्कर्स, बट दे आर नॉट गिविंग देम एज मच रिस्पेक्ट, वैल्यू भी नहीं दे रहे, दूसरा रिस्पेक्ट, उनके काम को रिस्पेक्ट भी नहीं दी जा रही, ठीक है, रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही। एज कि क्या 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 कहा जाता है कि उनकी जो मिलानी है वो उनको उसकी जो वो एक 3 स्टोरी हाउस है उसमें काम करती है, बहुत रिच फैमिली है जिसमें कि वो काम करती है, बट उसके जो मेम साहब है शी इज वेरी स्ट्रेंज, और शी शाउट टू गेट हर वर्क डन, अपना काम करने के लिए उसमें शाउट भी करती है। एंड शी ऑल्सो से कि उसका जो वर्क है कि one girl she is having work in kitchen, other is having work in cleaning, and they will get only 1 cup of tea and 2 roti, ठीक है, they will not get 3rd roti, उनको 3rd roti भी नहीं मिलेगी। So it means and they have to walk barefooted in the house, और घर में they can't wear chappal also, so in the cold winters their feet get swollen, so इसमें भी उनको बहुत परेशानी होती है। It means कि they are not treated with respect, उनके ठीक है उनको काम करने के लिए सैलरी मिल रही है, बट उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उनके वर्क की कोई रिस्पेक्ट नहीं कंसिडर हो रही, ठीक है। सो इसी तरह जो रूरल और अर्बन, कई रूरल एरियाज में बहुत हार्ड वर्क भी होता है, ठीक है, वुमेन्स का, तो ये जो वैल्यूइंग हाउस होल्ड वर्क है ना, ये इसी के अंडर सारे पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है, कि वुमेन जो वर्क है, वुमेन भी बहुत सारे वर्क करती है, केयर गिविंग टास्क भी हैं, वेरियस हाउस होल्ड वर्क भी हैं, उन हाउस होल्ड वर्क के लॉन्ग आवर्स होते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है उनको करने के लिए,
और फिजिकल वर्क भी बहुत सारा होता है, उसमें लॉन्ग आवर्स भी होते हैं, फिजिकल वर्क भी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको वैल्यू नहीं करते, डी वैल्यू करते हैं। और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी भी सेम पोजीशन है, they are also not getting the respect they due respect, or they have to be given, and they are giving also less value of their work. So same कि कई विलेज जो रूरल एरियाज हैं, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में भी वुमेन को बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है, कई बार उनको बहुत logs of wood they have to carry, they have to fetch water from far away places, so such hard work they have to do in rural areas. So there is some data, आपकी बुक में एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में क्या शो किया हुआ है, ये टेबल है आपकी बुक में, टेबल में है कि कितने आवर्स के लिए टाइम दिया जाता है। जैसे वुमेन है, अगर वुमेन काम करती है तो उसकी पेमेंट कम है, लेकिन अगर मेन काम कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट ज्यादा है, ठीक है, जो कई वुमेन्स को काम करने के पैसे भी नहीं मिल रहे, वुमेन पेड पर वीक, वुमेन अनपेड, ठीक है, और मेन पेड मेन अनपेड, कि कितने मेन को पेमेंट मिल रही है, कितने को नहीं पेमेंट मिल रही, तो इट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। अब ये हमने डिस्कस किया कि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी, ठीक है, कि here the boys and girls who are growing they are having different treatment, here they are having different opportunities, ठीक है, then in every household work their society has created one thinking कि household work they are related to women only, ठीक है, so now it has to be dealt through actions by the government। अब गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा और ज्यादा डील करना पड़ेगा कि so that it can be ensure कि this is not only the work of women, ठीक है, कि ये सिर्फ वुमेन का वर्क नहीं है। सो ये although कि there is some physical inequality, ठीक है, क्या है, हम कह सकते हैं कि डिफरेंस है, ठीक है, difference of gender is there, but both have the quality, both should have the opportunity to do all work। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होना चाहिए कि दिस इज द वर्क ऑफ मैन एंड दिस इज द वर्क ऑफ अ वुमेन, ठीक है। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इक्वालिटी दी गई है, ठीक है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो इन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर गिविंग इक्वालिटी, इक्वालिटी इज गिवन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, कि all the boys and girls are equal and no inequality should be done with any person, but in reality what happens, in reality there is inequality। अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में तो इनइक्वालिटी है। तो बर्डन जो बर्डन है केयर गिविंग का, हाउस होल्ड वर्क का, दैट इज ओनली ऑन वुमेन। बर्डन किसके ऊपर होता है, वुमेन, शी हैज टू डू सी ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारा बर्डन वुमेन के ऊपर ही है इन आवर सोसाइटी। सो दिस थिंग हैज टू बी टेकन केयर, एंड ऑल्दो गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए भी हैं कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए थोड़ा और इजी हो जाए। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे गवर्नमेंट स्कूल के साथ आंगनबाड़ी एस्टेब्लिश की गई है। आंगनबाड़ी में क्या होता है, द स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, they can carry the small children with them and they can spend their time in आंगनबाड़ी, ठीक है। उसी तरह गवर्नमेंट ने डिफरेंट रूल्स बनाए हैं, बट स्टिल मेनी मोर हैज टू बी डन इन दिस एस्पेक्ट, ठीक है, अभी भी इसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। सो एट द बैक एक्सरसाइज देयर इज नो क्वेश्चन स्पेसिफिक, ठीक है, so you have to do questions from the chapters only, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में you can't there is no question that you can write on your notebook, ठीक है, so you just make points from these and you can write some points on your separate folder you can keep, ठीक है। and in this what questions you can do, that how household work is devalued, devalue कैसे की जाती है, ठीक है, how less respect is given to
what is the life of domestic workers? ठीक है, what about the lives of domestic workers? What our constitution says on inequality, and how whether there is equality with the women in reality. Constitution gives us equality, but whether there is equality in reality, no. ठीक है, so what is the life in Samoa Islands? What is the life? What about the life in Madhya Pradesh? ठीक है, and how society makes distinction. Society distinction कैसे करती है? By giving them toys and by instructing them to do this thing, to do not this thing. ठीक है, so this is the distinction made by, and how women work is devalued. वुमेन के वर्क की डी वैल्यू कैसे होती है? हाउ वुमेन आर ओवरबर्डन. ठीक है, एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट इज केयर गिविंग टास्क? टू whom is responsibility of this care giving task? So all these questions can be from this topic. So any doubt, please let me know, beta. Yes, Vachin. What do you mean by double burden? अब ये double burden, if woman is working also and doing household work also, so then she is double burden, तो वो double burden हो जाती है. ठीक है, but even then her work is devalued. Yes, दृष्टि. मैम हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन शेयर में नहीं करने. Yes, बच्चे. मैम हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन शेयर में नहीं करने. Yes, on notebook you will not write, but from book you will do these questions. ठीक है, I hope you have underlined the points or written note down the points. ठीक है. Yes. Yes, any other query? और मुगल एम्पायर वाले चैप्टर के कॉपी सेंड करनी है. Yes, बेटा. मैम मुगल एम्पायर के दिल्ली सुल्तान के चैप्टर की कॉपी सेंड करनी है. इस प्रीवियस चैप्टर्स के तो बच्चे करने ही है. ओके, सो डोमेस्टिक वर्कर्स की जो लाइफ है, डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ क्या है कि दे आर गिवन लेस वैल्यू ऑफ देयर वर्क. देयर वर्क इज आल्सो नॉट रिस्पेक्टेड. उनके वर्क की भी लेस रिस्पेक्ट है, एज वी हैव डन एग्जांपल ऑफ मालिनी. ठीक है, मिलानी का एग्जांपल किया है कि शी इज नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. जो उसके एम्प्लॉयर है उससे उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही. शी इज गिवन जस्ट 2 रोटीज and at third roti she is not allowed to wear chappal also in the house. So this is all, they are not giving respect. The lives of domestic, they are not giving salary. They are doing a lot of work, but they are not getting proper value of their work. Clear? Any other doubt? Yes, bache. Okay, any other student is having doubt, so go through this chapter. ठीक है, if there is still any doubt, then we will discuss in the class. Okay.